Hello and welcome to the live session by Infinity Learn by Sri Chaitanya. We are over here with the fourth chapter according to your syllabus, that is quadratic equations over here. In the previous sessions, we were talking about pair of linear equations. First we did real numbers and polynomials and then linear equations. Now we are over here with quadratic equations. So we are going to do it. We will just work according to the syllabus, right? And then we'll be doing questions on the basis of that. So let's start with it, guys. So this is your syllabus according to the boards. The first is the standard form of a quadratic equation. That what is a quadratic equation over here? What is a quadratic equation? And then solution of a quadratic equation using factorization method and using the quadratic formula. Completing the square method is not in the syllabus. It used to be like 3-4 years back. Then you've got relationship between discriminant and nature of roots. One question you can expect from here. And then word problems, that is situational problems based on quadratic equations, which we'll take up in the next session. Okay, so that's all about the syllabus in this chapter. Let's start it. A very good evening to all of you. Welcome to this session. Okay, chalo shuru karte hain. So the first thing is, what is the standard form of a quadratic equation? So the standard form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are constants. A, b and c, they are constants over here. These are constants and a is not equal to 0. Coefficient of x square cannot be equal to 0, because if coefficient of x square becomes equal to 0, this equation will not remain a quadratic equation. So any doubt in the standard form of a quadratic equation, guys? A very good evening to all of you. Okay, you're in Bangkok, that's good. Hello Ashok, welcome to this session. A very good evening, guys. So any doubt in the standard form of a quadratic equations, guys? इसमें किसी को कोई problem है तो बताओ. चलो. Okay, so I'm asking one or two simple questions, क्योंकि कई बार इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाता है बोर्ड एग्जाम्स में. Suppose I'm giving an equation to you. So if I ask for what value of p this equation is a quadratic equation, can you tell me? For what value of p this equation is a quadratic equation? Just see over here and let me know the answer in the chat, guys. A very good afternoon to all of you. देखो ये टाइम कुछ ऐसा है 3 बजे का कि आफ्टरनून भी है और इवनिंग भी है, तो कोई बात नहीं. बताओ यहाँ पे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बताओ. दिस इज p माइनस 1 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0. p की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ओके, वेरी गुड. सो नितिन एंड शिवम ने बताया 1. वेरी गुड, करेक्ट आंसर है. बिल्कुल, कृष्णा ने भी सही बताया है. चलो ओके, ठीक है, तुम लेफ्टी हो, मैं मान गया. ड्रैकुला, एक तो नाम चेंज कर लो. बिल्कुल 1 सही है. देखो, इफ यू वांट दिस इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या है कि यहां पे एक्स क्यूब का जो टर्म है, इट मस्ट नॉट बी देयर. द टर्म इन विच एक्स क्यूब इज देयर, इट मस्ट नॉट बी देयर, राइट? अब देखो, ये तो एक कांस्टेंट वेरिएबल है. एक्स क्यूब इज अ वेरिएबल बिकॉज इट इज एक्स इन दिस केस. सो इसका मतलब है कि अगर आपको ये नहीं चाहिए, इफ यू डोंट वांट दिस टू बी हियर, सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि p माइनस 1 हैज टू बी इक्वल टू 0. सो p माइनस 1 हैज टू बी इक्वल टू 0, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. इसका मतलब है द आंसर इज p इज इक्वल टू 1. So for p is equal to 1, this equation will not remain a quadratic equation. I hope ये सबको क्लियर है. बिल्कुल. चलो एक और क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं. Many a times ये एक नंबर का आ जाता है, कोई कंपल्शन नहीं है लेकिन आ सकता है. ठीक है.
इज दिस इक्वेशन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ मुझे गाइस कमेंट सेक्शन में. जस्ट लेट मी नो दैट इन द चैट बिलो. Is this equation a quadratic equation? बोलो गाइस. ओके, देखो ठीक है. सो मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग नो एंड सम स्टूडेंट्स आर सेइंग यस एज वेल. ठीक है, तो देखो व्हेन यू सी एन इक्वेशन, देखते ही ये डिसाइड नहीं करना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं. जस्ट बाय सीइंग इट यू कैन नॉट डिसाइड इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. फॉर दैट यू हैव टू सिंप्लीफाई, है ना. ऐसे ही देख के नहीं, देखो वही मैं बता रहा हूं, अभी तुम देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, या क्यूबिक है, या कौन से टाइप की इक्वेशन है. तो मैं बोलता हूं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको क्योंकि तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो. यू सी, you have studied one identity, right? This cubic identity you have studied, a plus b the whole cube in grade 9. ये क्या होता है guys? This is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, right? You have studied this cubic identity. ठीक है, तो यहाँ पे left hand side में you can use that identity and let's see what will happen. So it is of the form a plus b the whole cube. So let's use a plus b the whole cube identity. So it will be a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square b square, and that is equal to x cube plus x square plus x cube. Now you see over here कि this is x cube guys, okay? So you can cancel out this x cube or not. बताओ. So अब बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं. इसको अच्छे से लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हो. So you can write it in that form. This is 8 plus 6x square plus 4 3s are 12x and that is equal to x square. So you see this x square you can subtract. So you can write it 5x square plus 12x plus 8. Now let me know if it is a quadratic equation or not. बिल्कुल ये quadratic equation है because it is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है, so आपको देख के बताना है कि वो quadratic है कि नहीं है. पहले simplify करो, then you can decide if it's a quadratic equation or not. ऐसे ही तुम नहीं बोल सकते हो, question आ जाएगा 1 मार्क का. कई बार आ चुका है. अब देखो obviously I cannot be very sure, I cannot say that कि ये आएगा ही, लेकिन आ सकता है. I hope it is clear. चलो, बस यहाँ पे मैंने क्यूबिक आइडेंटिटी यूज की है, a plus b the whole cube identity. ठीक है, चलो. नाउ अब देखो कि विल लर्न हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसके 3 मेथड्स हैं. वन इज द फैक्टराइजेशन मेथड, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड is not in the syllabus. It used to be like 3-4 years back, right? So only 2 methods are there, factorization method and the quadratic formula. So पहले factorization method से कुछ questions कर लेते हैं. बताओ इसको solve करके what is the answer guys in the chat below. Yes, let me know the answer in the chat. Quadratic factorization से ही करो, quadratic formula मत use करो. हालांकि देखो if it comes in the examination, if suppose किसी मेथड का नाम नहीं गिवन है तो तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो आउट ऑफ दीज 2 मेथड्स. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाय नेम लिखा है कि यू हैव टू यूज फैक्टराइजेशन मेथड ओनली. सो यूज दैट एंड लेट मी नो कि इसके रूट्स क्या होंगे. बताओ. सॉल्व इट एंड लेट मी नो द आंसर इन द चैट. बताओ गाइस, what are the roots of this quadratic equation? हाँ, जो भी मेथड है मैं ऑब्वियसली उसको बताऊंगा अशोक कुमार सिंह. पहले यू कैन ट्राई डूइंग इट एंड लेट मी नो द आंसर इन द चैट. ओके, एक रूट आ रहा है, एक रूट तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे.
चलो आंसर मुझे भी याद नहीं है, मैं भी आई विल डू विथ यू ओनली। ओके, हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे तुमने पढ़ा होगा कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आई हैड डिस्कस इन द पॉलिनोमियल्स चैप्टर एज वेल, कि यहाँ पे तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करते हो, है ना। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हो, सी आई राइट ओवर हियर फॉर यू। So middle term splitting में what do you do guys? You take the first term and the last term. What is the product of the first and the last terms over here? अब यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। कई बच्चे क्या करेंगे कि दे विल मल्टीप्लाई 21 एंड 8 और फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो ये करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई इट। क्यों मल्टीप्लाई करोगे? तुम्हें चाहिए क्या यहाँ पे, यू वॉन्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इंटू 21, राइट। सो यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तुम यहीं से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 और 21 का 7 इंटू 3। तो ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन है, राइट। नाउ यू वांट टू स्प्लिट -22 ओवर देयर, तो यहां से तुम्हें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए विच विल गिव यू -22। बताओ क्या आएगा यहां से, तो देखो यहां से करके बताओ मुझे। देखो मुझे दिख गया यहां पे 7 2s are 14, 2s are 28 होता है और 3 2s are 6 होता है ना। तो 22 को तुम लिख सकते हो 28 माइनस 6। बताओ, सो इज दिस द प्राइम फैक्टराइजेशन विच यू नीड ओवर हियर। इसी तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो यानी कि -22 को वी कैन राइट, सी दिस इज -8x स्क्वायर एंड -22 वी कैन राइट एज -28x प्लस 6x और -21 विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, अब देखो दो ग्रुप्स हैं, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द सेकेंड ग्रुप। आउट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप यू कैन टेक 4x as common, so what will be left, 2x minus 7. यहाँ से if you take 3 as common, so what will be left, 2x minus 7. So out of the whole expression in the left hand side, can I take 2x minus 7 as common? So I can take 2x minus 7 as common. So what will be left guys, 4x plus 3. तो इसके दो रूट्स कैसे आएंगे बताओ, इसके दो रूट्स कैसे आएंगे। सो यू कैन टेक 2x minus 7 is equal to 0 or you can take the other factor 4x plus 3 is equal to 0. So the roots over here are x is equal to 7 by 2 and you can write it collectively over here, this will be minus 3 by 4. So these are the roots of this quadratic equation. So is this clear to every student in the class? Just let me know that in the comment section below. बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, वेरी गुड। तुम लोगों को पता होगा, आई थिंक ड्रैकुला तुमने थोड़ी सी कुछ मिस्टेक कर दी है वहां पे, -3/4 इज द आंसर। ठीक है, बताओ एनी डाउट इन दिस थिंग गाइस टू एनी स्टूडेंट इन द क्लास, कि हाउ कैन यू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। -3/4 आ रहा है ड्रैकुला, चेक करो यहां से, देखो -3/4 आ रहा है। ठीक है, चलो, इज इट क्लियर गाइस। 3 तो नहीं है इसका रूट, कि श्रीनु यू आर गेटिंग 3 बट 3 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट ओवर हियर गाइस। ओके, चैट में मुझे बताओ ताकि क्लियर है तो मैं आगे करूं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, लेट मी नो दैट गाइस इफ इट इज क्लियर टू यू और नॉट। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन करो, लेट मी नो द आंसर इन द चैट। what are the roots of this quadratic equation by factorization method? फैक्टराइजेशन मेथड से करके बताओ। चलो देखो, बता दोगे तो सही रहेगा, ताकि obviously it would be beneficial for you only if you let me know if you are getting it or not. So in this class we are just going to do how to solve a quadratic equation and nature of roots of a quadratic equation, right? Word problems we'll take up in the next class. Chalo, very good Ashok, if it is clear to you.
आराम से देखो समझ में आनी चाहिए चीजें, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पता होगा पहले से, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो क्योंकि एग्जाम 30 डेज के बाद है, सो विल जस्ट टेक अप द टॉपिक्स ओवर हियर। लेट मी नो द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस। Okay, so KMR is saying that we have to simplify it first. What about other students over here? देखो यहां पे दो तरीके हैं, यू कैन सिंप्लीफाई इट, और अगर चाहो नहीं भी सिंप्लीफाई करो तो भी हो सकता है। ये दोनों चीजें हैं, दोनों ही सही होंगे, तुमको दोनों से रूट सही मिल जाएंगे। तो मान लो कि मैं सिंप्लीफाई करके करता हूं यहां पे, तो देखो लेट्स सिंप्लीफाई इट। सो ओवर हेयर वी कैन यूज इन दिस थिंग, वी कैन यूज a minus b the whole square identity, right? So it will be a square that is x square minus 2ab यानी 2x हो जाएगा, plus b square यानी 1 हो जाएगा। Now if you open up this bracket, what will you get? You'll get minus 5x plus 5 minus 6 is equal to 0. अब इसको further simplify करो, so you'll get x square, और देखो minus 2x minus 5x will give you minus 7x, और you see this is, ये देखो 1 plus 5 is 6 और minus 6, so 6 minus 6 तो 0 ही हो जाता है ना। so ये देखो directly is equal to 0 आ गया, खत्म बात। अब यहां से you can take x as common, so x minus 7 will be left and that is equal to 0। बताओ ये सबको क्लियर है? यहां पे किसी को कोई डाउट है? अब देखो यहां से रूट्स निकालोगे तो दो रूट्स आएंगे, एक x इज इक्वल टू 0 आएगा और दूसरा x इज इक्वल टू 7 आएगा, खत्म। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताओ। तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, 5 माइनस 2 तो नहीं आना चाहिए अशोक, कुछ आई थिंक सिंप्लीफिकेशन में तुम गलत कर रहे हो, उसको चेक करो। रोहन तुम्हारा भी 2 and 5 आ रहा है, 2 and 5 तो नहीं आना चाहिए। ये आसान है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आराम से सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे 0 और 7 है। अच्छा एक चीज और, आंसर आ गया, सो यू कैन वेरीफाई दैट इन द इक्वेशन एज वेल। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0, व्हाट विल यू गेट? सी, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0, वेरीफाई कर लिया करो दिमाग में ही, राइट? हालांकि आई एम शोइंग इट। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0 minus 6, so what are you getting over here? This will be 1, this will be 5 minus 6. You see this is also 0. So it means x is equal to 0 is correct. उसी तरीके से x is equal to 1 पुट करो तो देखना वो भी करेक्ट होगा। Is this clear? हाँ, तुमने आई थिंक सिंप्लीफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम की है, रोहन एंड अशोक। नहीं, मैंने कैलकुलेशन गलत नहीं की, मुझे आंसर ये पहले से पता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं तुम्हें। चलो क्लियर है सबको? तुम चाहे वेरीफाई करके देख लो। देखो x इज इक्वल टू 0 इज गेटिंग सेटिस्फाइड इफ यू टेक x इज इक्वल टू 7 ओवर हियर इन द इक्वेशन। सो देखो अगर ये सोल्यूशन है तो इट मस्ट गेट वेरीफाइड, दैट्स इट। देखो अगर सोल्यूशन है तो वो वेरीफाई हो जाना चाहिए, यही तो होता है सोल्यूशन का मतलब। 7 minus 1 is 6, 6 6 are 36 माइनस ये देखो क्या आएगा, 6 5 are 30 माइनस 6, तो ये भी देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों रूट्स करेक्ट हैं। जब दोनों ही वैल्यूज ऑफ x इज गेटिंग सेटिस्फाइड इन दिस इक्वेशन, इट मींस बोथ द रूट्स आर करेक्ट ओवर हियर। ये सबको क्लियर है? प्लीज डोंट स्पैम ओवर देयर अजिंक्य, थोड़ा समझो इस चीज को। किसी को कोई डाउट है इस चीज में तो बताओ। लेट मी नो दैट इन द चैट बिलो गाइस। चलो क्लियर है सबको? ये करके बताओ, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? लेट मी नो द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर हियर। अब देखो यहां पे कोई मेथड का नाम नहीं है, नो मेथड इज मेंशन्ड ओवर हियर, सो इट इज अप टू यू कि तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो या फैक्टराइजेशन यूज करो। लेकिन अभी हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन सीखा इस क्लास में, सो विल यूज फैक्टराइजेशन ओनली, राइट? और अभी तुम्हें समझ में आएगा कि फैक्टराइजेशन से ज्यादा आसान होगा ये। बताओ। ओके, KMR इज सेइंग ठीक है, वो भी कर सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू, वैसे भी कर सकते हो या फिर अभी मैं बताऊंगा। ट्राई डूइंग इट एंड लेट मी नो द सॉल्यूशन ऑफ इट इन द चैट बिलो गाइस। बताओ कि इसके रूट्स कैसे निकालोगे तुम।
लेट मी नो दी सोल्यूशन गाइस। देखो मैं तो कर ही दूंगा, आई वॉन्ट दी सोल्यूशंस फ्रॉम यू पीपल इन द चैट बिलो, इन द चैट, राइट, कि सोल्यूशन क्या आएगा इसका। ओके देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन तुम यूज कर सकते हो। अच्छा एक चीज और, फैक्टराइजेशन यू मस्ट हैव स्टडीड इन ग्रेड 7, 8 एंड 9, राइट। सो फैक्टराइजेशन करने का सिर्फ एक तरीका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं होता है। फैक्टराइजेशन कैन बी डन यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एज वेल, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी तो यूज कर सकते हो फैक्टराइजेशन करने में। अब ऐसा थोड़ी कि हर जगह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही लगाओगे, समझ रहे हो, हर जगह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई डोंट रिमेंबर, ये शायद कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जान के इन्होंने एक ब्रैकेट यहां पर दे दिया है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, समझे। तो यहां पे क्या तुम कर सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस, 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो इस चीज को, यू सी दिस थिंग, राइट, क्या इसको हम a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में समझ सकते हैं। देखो कैसे, I can write it like this, 3x the whole square minus 2 into 3x into p plus p², देखो, and this will remain as it is, minus q² is equal to 0 will remain as it is. Now you see this whole thing, ये क्या है, is it of the form a² minus 2ab plus b² guys? So वो क्या होता है, a minus b the whole square. So this is nothing but 3x minus p the whole square और minus q² as it is है is equal to 0, ठीक है। अब देखो क्योंकि क्वाड्रेटिक यूज करना है हमें, फैक्टराइजेशन यूज करना है, तो क्या ये चीज आपके पास a² माइनस b² के फॉर्म में है। a² माइनस b² क्या होता है, पढ़ा है तुमने बचपन से, दिस इज a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट। सो यहां पे देखो ये पूरी चीज जो है, दिस होल थिंग, इसको तुम a कंसिडर कर सकते हो, इसको b कंसिडर कर सकते हो। सो इट विल बी a प्लस b a माइनस b। सो ये क्या आएगा, 3x माइनस p प्लस q इंटू 3x माइनस p माइनस q। ये क्लियर है सबको। अब इसके दो रूट्स हाउ कैन यू फाइंड गाइज, फर्स्ट यू विल टेक दिस इज इक्वल टू 0 एंड देन यू कैन टेक दिस इज इक्वल टू 0। सो ये क्या होगा गाइज, 3x माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0, और यू कैन से ओवर हेयर और 3x माइनस p माइनस q इज इक्वल टू 0। बताओ यहां तक सबको क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, बताओ। ओके ठीक है, अब वो तुम देख लो कि तुम्हें ट्यूशन जाना है या कहां जाना है, लेकिन इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी इन दिस सेशन, बताओ सबको क्लियर है या नहीं है। अब यहां से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x गाइस, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड x इज इक्वल टू, देखो p और q को दोनों को यू विल टेक ऑन द राइट हैंड साइड, सो दिस विल बी p माइनस q बाय 3, और यू कैन से again over here you will take p and q on the right hand side, so x is equal to p plus q by 3. Now you see कि इस आंसर को we can write in the combined format, right, p minus q by 3 and p plus q by 3. So यहां से can I write x is equal to p plus minus q by 3. ये देखो देखने में अच्छा लगता है इसीलिए इस फॉर्मेट में लिखते हैं और एक होलसम थिंग लगती है। So is it clear to everybody in this session? Let me know that in the chat below guys. Clear है सबको? Hello लियाकत। ओके चलो इसको एक बार मैं क्विकली वो कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं। देखो यहां पे क्या है, 9x², गिव मी सम सेकेंड्स, देखो इस चीज को, इफ यू सी दिस थिंग ओवर हेयर, सो क्या इसको आई कैन राइट a² माइनस 2ab प्लस b² फॉर्म, yes or no? I can do in that form.
सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? इज इट a माइनस बी दी होल स्क्वायर गाइज? और क्यू स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। देखो, सो क्या ये चीज अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है? देखो, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल दो। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है? यानी कि इट विल गिव यू 3x माइनस पी प्लस क्यू एंड 3x माइनस पी माइनस क्यू। अब दोनों ही फैक्टर्स को एक एक बार यू कैन पुट इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट x इज इक्वल टू, इन चीजों को यू कैन टेक इट ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल गिव यू p माइनस क्यू बाई 3। और यहां पे इफ यू टेक दीज थिंग्स ऑन द राइट हैंड साइड, it will give you p plus q by 3. Now you see it is p minus q by 3 and p plus q by 3. So plus minus यहाँ पे लिख सकते हो in the combined format, in the standard format you can say. So is it clear to everybody guys? चलो, I hope रंधावा is it clear? सुखजिंदर I think. Clear है सबको? किसी को कोई डाउट इस चीज में है तो बताओ। चलो, and also you can go back and watch the video, you'll get it, right? चलो, now solution of a quadratic equation by quadratic formula. चलो, very good, thank you for that, ड्रैकुला। तुमने नाम, एक तो नाम अपना ओरिजिनल रख लो, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ड्रैकुला, उसको एक्चुअल नेम रख लो। ये देखो, अभी जस्ट वी हैव सीन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा अगर हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल में भी हमने देखा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हो सकते थे, वहां पे जीरोज होते थे, इक्वेशन के रूट्स होते हैं, ठीक है? जो पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं वही इक्वेशन के रूट्स होते हैं। सो थिंग्स विच आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, दो सेम थिंग्स आर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है? चलो, अगर अल्फा एंड बीटा हैं, सो उन्हें तुम ऐसे शो कर सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरे रूट को यू कैन शो एज माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है? जहां पे d जो है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट? अभी हम समझेंगे नेचर ऑफ रूट्स में, जैसा कि मैंने तुम्हें क्लास के पहले बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स हमें देखना है, ठीक है? सो एनी डाउट टू एनीबॉडी इन दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? अब देखो, इसका डेरिवेशन भी होता है यूजिंग कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर मेथड, ठीक है? लेकिन वो हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो पूरा मेथड ही सिलेबस में नहीं है। डेरिवेशन होता है, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। अब अभी तक अगर नहीं किया है तो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है, वो नहीं आएगा एग्जाम में। लेकिन वैसे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बोलूंगा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। लेट मी नो दैट इन द चैट बिलो गाइस। चलो, मैं कोई छोटा सा इक्वेशन तुम्हें दे रहा हूं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करके मुझे बताना। अब उसमें चीटिंग मत करना, ठीक है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही मुझे बताओ कि इसके रूट्स क्या होंगे। जस्ट प्रैक्टिस इट ओवर हियर, राइट? जस्ट लेट मी नो व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत आसान है, आई नो दैट, लेकिन बस मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन। आप मुझे बताइए व्हाट आर द रूट्स ऑफ इट, ठीक है? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओनली। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विदाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एनीवे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसी से होके आता है, ठीक है ना? KMR कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही। अब उसको तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर तुम किसी दो तरीके से हो सकते हैं। अगर इफ यू टेक द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी दो तरीके से लगा सकते हो। एक्चुअली अगर बात करोगे तो मैथमेटिकली दे आर नॉट टू डिफरेंट वेज, वो एक ही चीज है, ठीक है? हाँ, एक और बहुत सारी चीजें हैं KMR। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। तो उसमें और भी चीजें आती हैं। अभी जैसे देखो, नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे जो तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में है, सिर्फ उतना थोड़ी है। नेचर ऑफ रूट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर तुम फाउंडेशन की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे होगे, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग बोर्ड के हिसाब से देख रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी आर टॉकिंग अबाउट। लियाना एक्चुअली मुझे विजिबल नहीं है, इसीलिए आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। देखो, ग्राफ्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन
दिस इज अ सीरीज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, यू हैव गॉट ओनली 30 days लेफ्ट, इसीलिए उसी पे काम करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके रूट्स क्या आएंगे बताओ, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करो। पता है मुझे कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक देखो अभी भी गलत बता रहे हो तुम लोग। नितिन गलत है ये, अब प्लेज तुमने जो लिखा वो भी गलत था। इसके रूट्स बताओ। अब इसके रूट्स गलत बताओगे तो देखो गलत बात है, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगेगा मुझे, है ना। अब मैं देखो जोर से ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सोच नहीं रहा हूँ चीज़ों को अबाउट यू, राइट। हाँ चलो, -1 -2 सही है। देखो इसको करते क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही है, ठीक है। लेट्स डू इट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओनली। सो इक्वेशन वाज x² + 3x + 2 that is equal to 0. So the first thing to do when you use the quadratic formula is to find the discriminant. उससे भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो। अगर यहाँ पे तुम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लोगे सो दैट वुड बी बेनिफिशियल, ठीक है। ये लिख लिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म। अब उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो। जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, दैट इज b² - 4ac। अब यहां पे b क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ x, सो b² - 4ac। a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² कुछ नहीं है तो 1 है, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म दैट इज 2। तो ये क्या है बताओ, 9 - 8 1 है ये, ठीक है। अब इसके रूट्स देखो, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं शॉर्टकट में अगर चाहो तो, x इज इक्वल टू -b ± √d/2a भी यू कैन राइट, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या आएंगे बताओ यहां से, x इज इक्वल टू -b, सो -3 ± √d दैट इज 1/2a इज 1। सो इसके दो रूट्स क्या हो गए, अगर तुम यहां से अलग कर लो इसको तो -3 + √1 इज 1/2 और इट इज -3 - 1/2, ठीक है। और नहीं, यहां पे तो एंड ही आएगा, सॉरी। चलो, तो यहां से क्या आएगा, ये -2/2 यानी -1, और ये क्या आएगा -4/2 -2। So -1, -2 are the roots of this quadratic equation. Is this clear to everybody in the class? सर मेरा एग्जाम मार्च में है। ओके, आई थिंक तुम किसी दूसरे बोर्ड से होगे, KMR शायद, है ना। चलो किसी भी बोर्ड से हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सिलेबस में रहेगा ही। और अगर इफ यू आर गोइंग टू टेक मैथमेटिक्स आफ्टर ग्रेड 10, ये हमेशा ही यूज होगा। देखो ये बिल्कुल हर जगह यूज होने वाला। एक चीज और मैंने यहां पे अभी बताना भूल गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को श्रीधराचार्यज मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, श्रीधर आचार्यज मेथड। हालांकि इस नाम से यू विल नॉट गेट दिस क्वेश्चन, लेकिन फिर भी यू मस्ट नो। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज श्रीधर आचार्यज मेथड, and I am श्रीधर आचार्यज। चलो ठीक है, स्पेलिंग आई हैव रिटन इट करेक्टली। चलो ये सबको क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में? तो देखो अभी एक दो क्वेश्चन हमने उससे किया था, उसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लेट्स डू, राइट। तो करते हैं, पहले इसको तुमने कर लिया है, एनी डाउट किसी को भी इस चीज में बताओ। हाँ कोई बात नहीं, अब देखो नाम है तो अशोक, अब वो मैंने डबल ई यूज करा या आई यूज करा कोई बात नहीं, I've got that benefit of doubt, right? Okay, thank you for that. Cook with Chef Savita. चलो आगे करते हैं, इसको सॉल्व करो, इसके रूट्स बताओ मुझे। अब यहाँ पे देखो यू डोंट हैव एनी मेथड मेंशन अगेन, सो इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से कर लेंगे, ठीक है, ताकि वी कैन सी बोथ द मेथड्स ओवर हियर, दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो इसको करके बताओ, What are the roots of this? अब ये देखो, देख के बड़ा तुमको लग रहा होगा, अब इसको करो, इसमें ट्रिक है एक्चुअली बताऊंगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली तुमने किया होगा, अगर प्रैक्टिस किया भी होगा तो पहले।
So let me know the roots of this quadratic equation over here. Let me know that, guys. क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा करके बताओ, थोड़ा 1 मिनट टाइम लो, आई एम गिविंग यू दैट टाइम, लेकिन इसको करके बताओ मुझे, ये इंपॉर्टेंट है इस टाइप का. एक्चुअली आई एम नॉट श्योर कि ये एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या नहीं, बट क्वेश्चंस लाइक दिस दे हैव कम बिफोर. कोई इसमें कोई नई बात नहीं है. अगर ऐसा आ जाए तो उसमें डरने वाली बात नहीं है. बताओ इसको क्या होगा. ये अगर आएगा तो देखो ये 3 मार्क का रख लो, 3 मार्क का है. अब ऐसा नहीं है 4 मार्क का भी आ जाएगा, समझ रहे हो, मतलब होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है. अच्छा, KMR a प्लस बी प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स. ओके, रोहन का देखो आंसर भी आ गया एंड आई थिंक इट इज करेक्ट, ऑल्दो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इट. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एक तो यू मस्ट हैव बीन थिंकिंग कि यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर दूं, है ना. तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लूँ और उसको कर दूँ, फिर तो हो जाएगा वैसे भी, लेकिन इट विल वेस्ट योर टाइम. देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, बड़ा सा बनेगा, क्या होगा फिर देखो, यहाँ तुम्हारे पास यूल गेट बी एक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स, और फिर यहाँ पे आएगा ए बी. तो इट विल वेस्ट योर टाइम, राइट. ऐसे तो करना ही मत ऐसे क्वेश्चन को, मतलब मैं वही बता रहा था कि ट्रिक है इसमें, यू मस्ट रिमेंबर इट्स ट्रिक. तो इसको कैसे करेंगे देखो वो बता देता हूँ. इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस ये करो कि ये जो वेरिएबल वाली टर्म है इसको यू कैन टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. वेरिएबल वाली टर्म को टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब देखो क्या आएगा यहां से, तुम देखोगे ऑटोमेटिकली थिंग्स विल गेट कैंसल्ड आउट. सो दिस इज ए प्लस बी प्लस एक्स. वेरिएबल वाली टर्म को यू हैव टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी. ये है देखो. अब यहां पे एलसीएम इफ यू विल टेक, व्हाट विल यू गेट, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना. सो दैट इज ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स. अब यहां देखो ये x इधर आ जाएगा, माइनस a प्लस बी प्लस एक्स. एंड ओवर हेयर एज वेल यू कैन टेक एलसीएम, सो इट विल बी ए बी ओवर हेयर. इन द न्यूमरेटर यू विल गेट a प्लस बी, राइट. अब इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो एकदम बिल्कुल आसानी से तुम कर दोगे. सो माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन, इसको इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई. अच्छा, मल्टीप्लिकेशन क्या हम इस तरह से कर दें, क्योंकि उसका यूज होगा इसीलिए मैं बोल रहा हूं. किसी भी मेथड से करो, चलो कोई बात नहीं, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो. देखो इसको यू कैन मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. एंड दिस यू हैव गॉट ए प्लस बी अपॉन ए बी. सो यू सी दिस विल गेट कैंसल्ड आउट ओवर हेयर. अब यहां से देखो न्यूमरेटर में कैन आई टेक -1 इज कॉमन, सो विल गेट a प्लस बी ओवर हेयर, एंड ओवर हेयर इन द डिनोमिनेटर जो चीज है दैट विल रिमेन एज इट इज, ठीक है. नाउ यू सी दिस इज a प्लस बी अपॉन ए बी. सो मुझे एक बात बताओ, क्या वी कैन कैंसिल आउट दिस. ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, so you'll get minus ab that is equal to ax plus bx plus x square. I hope it is clear. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इसको इधर ले आओ और उसको सही से सेट कर दो. So you'll get x square plus ax plus bx plus ab. बताओ ये सबको क्लियर है. अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा अगर तुमने फैक्टराइजेशन के ऑब्वियसली क्वेश्चंस किए हैं. सो यू सी दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ओवर हेयर, दिस इज द सेकंड ग्रुप ओवर हेयर, राइट. अब यहां से इसको यू कैन जस्ट टेक एक्स एज कॉमन ओवर हेयर, टेक एक्स एज कॉमन, सो एक्स प्लस ए विल बी लेफ्ट. टेक बी एज कॉमन, सो अगेन एक्स प्लस ए विल बी लेफ्ट, दैट इज इक्वल टू 0 ओवर हेयर. अब आउट ऑफ द होल एक्सप्रेशन यू कैन टेक एक्स प्लस ए एज कॉमन. देखो out of the whole expression you can take x plus a as common, so you'll be left with x plus b and that is equal to 0. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से 2 रूट्स इसके आ गए या नहीं, आराम से, माइनस ए माइनस बी.
कोई डाउट है इसमें किसी को? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? ओके, ठीक है, तो थोड़ा बैक जाके देख लो। लियाना, इट इज नॉट विजिबल, आई एम सॉरी, इज इट लायना और लियाना? बिग आंसर नहीं है, तो वही मैं बता रहा था कुक विथ शेफ सविता कि बिग आंसर नहीं है। इफ यू यूज दिस ट्रिक यू विल डू इट विद इन सेकेंड्स। रोहन का आंसर भी आया। सो इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट इन द क्लास? जस्ट लेट मी नो दैट इन द चैट बिलो। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा ऐसे ही करना है। क्लियर है सबको? तो बताओ, जल्दी बताओ ताकि वी कैन डू अदर थिंग्स ओवर हियर। नेचर ऑफ रूट्स देखो अभी तक हमने किया नहीं है, वो आएगा एग्जाम में, ये बात समझ जाओ। से एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। इज इट क्लियर गाइस? देखो अब यहां पे एक और टाइप का इसी में कोई दूसरा क्वेश्चन, हालांकि वो करेंगे नहीं, वो आई एम गिविंग यू एज, तुम मुझे चैट में करके बताना आफ्टर द क्लास, लेट मी नो द आंसर। ओके, थैंक्स फॉर दैट। चलो एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है? सो सिमिलर है, अभी मत करना उसको, उसका आंसर आई वांट इन द चैट। क्लास के बाद चैट में मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। बस कुछ नहीं मैंने किया है, x के जगह पे 2x रख दिया। देखो आई होप कि ये विजिबल है। 1/a + b + 2x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/2x। तो इसको करके मुझे बताना चैट में, ठीक है, आफ्टर द क्लास। क्लियर है सबको? ओके, एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट। कृष्णा, ठीक है, कृष्णा नाम है तुम्हारा। चलो ओके, ये सबको क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब ये करके बताओ, इसके रूट्स बताओ, तुम्हारे ऊपर है। यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यू कैन यूज फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों में से कुछ भी कर लो। अब मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं तो फैक्टराइजेशन से करता हूँ क्वेश्चन, ज़्यादातर कोशिश करता हूँ। अब कहीं पे कोई कुछ ऐसी इक्वेशन दिखी जाए जिसमें फैक्टराइजेशन यू कैन नॉट यूज, कभी ऐसा हो जाता है तो तुम उसमें नहीं कर पाओगे। वरना ज़्यादातर क्वेश्चंस जो भी तुम्हें मिलेंगे, जस्ट मान जाओ कि उसमें फैक्टराइजेशन यू कैन यूज दैट इन बोर्ड्स, राइट? ओके, जे इंजीनियरिंग का आ रहा है -3/2, इसका बता रहे हो? अच्छा, पहले वाले का बता रहे हो, पता नहीं वो सही है कि नहीं। जय, क्लास के बाद करना, अभी ये कर लेते हैं, ठीक है ना? क्लास के बाद मुझे बताना चैट में, कमेंट सेक्शन बिलो में कि सही है, क्लियर है कि नहीं है। चलो इसको करो, जल्दी से करो, फिर नेचर ऑफ रूट्स देख लेते हैं। देखो, डू ओनली दोज थिंग्स विच आर रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम्स। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट योर बोर्ड एग्जाम्स ओनली। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम पढ़ो मत। देखो, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फाउंडेशन है, वो तुम्हें पता होगा अबाउट, बहुत बड़ा चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट अब टाइम नहीं है। अब अगर तुम फाउंडेशन के स्टूडेंट भी हो तो मैं बोलूँगा वही चीज़ें करो जो बोर्ड के हिसाब से रेलेवेंट हैं। इसका रीज़न ये सुनो, यू नो एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ आता है, बट अगर तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें सब कुछ अगर आता है तो तुम्हारे 100 में से 100 आने चाहिए। ये बात तुम समझ रहे हो ना? मैथमेटिक्स है ये, और उससे तुम्हारा मोरल बूस्ट होगा, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, तुम आगे जो भी करना चाहते होगे तुमको अच्छा लगेगा उससे। तो अगर सब कुछ आता है तो 100 में से 100 आने चाहिए। ये नहीं कि क्या हो जाएगा मार्क्स लाके, क्या मिल जाएगा। मिलेगा वैसे तो कुछ नहीं तुम्हें कि एकदम से तुम्हें कुछ 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा मोरल बूस्ट होगा। तुम आगे के लिए जो भी प्रिपेयर करोगे, जेई के लिए करोगे, नीट करोगे, कुछ और भी करना चाहते हो, तुम्हें अच्छा फील ज़रूर होगा। तुम जो आगे करना चाहोगे उसमें तुम्हें अच्छा फील होगा, यू विल फील बेटर अबाउट यू, राइट? सो जस्ट वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ गेटिंग फुल मार्क्स इफ यू नो एवरीथिंग। उसके लिए क्या है, फालतू चीज़ें मत करो जो सिलेबस में नहीं है। जो हैं अभी, जो साल भर कर लिया वो कर लिया, अब मत करो। अब 30-35 दिन है, बिल्कुल। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स, राइट? ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैथ्स में 100 नंबर आ गए, इंग्लिश में आ रहे हैं उनके 72 मार्क्स। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? इंग्लिश में भी अच्छे लाओ, इन एवरी सब्जेक्ट यू मस्ट गेट मैक्सिमम। ऐसा मत करो कि सिर्फ मैथ्स में ही लगे हो अभी से। ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी तुम ग्रेड 10 में हो, यू हैव टू डू गुड इन एवरी सब्जेक्ट, राइट? ऐसा मत करो कि अभी से तुम मैथमेटिशियन बनना चालू कर रहे हो, ठीक है? चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको कैसे करना है सॉल्व। मान लो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करता हूँ, ठीक है?
सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, उससे कंपैरिजन कर पाओगे. सो दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो व्हाट इज a? द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज √3. व्हाट इज b? द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 10. व्हाट इज c? द कांस्टेंट टर्म, इट इज 7√3. अब इसको सॉल्व करते हैं. उस सबसे पहले व्हाट आई हैड सेड अर्लियर कि डिस्क्रिमिनेंट पहले ही निकाल दो, है ना. दो बार क्यों लिखोगे एक ही चीज को? तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या है b यहां पे 10. सो 10 स्क्वायर माइनस 4a क्या है? √3 एंड c इज द कांस्टेंट टर्म दैट इज 7√3. अब 10 स्क्वायर इज 100 ओवर हेयर. अब यहां पे इसको डायरेक्टली करो, देखो √3 इंटू √3 विल बी 3. ठीक है, ये तुमने पढ़ा है पहले ही कि √x स्क्वायर इज इक्वल टू x. अब इसका भी रीजन होता है. अब ये मत कहना कि रीजन अभी बताओ, होता है इसका भी रीजन, प्रूफ भी होता है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके. चलो, तो ये 3 हो गया. अब यहां पे क्या आएगा? 21 माइनस 4 84, राइट? 84. सो दिस इज इक्वल टू 16. ठीक है. अब यहां से व्हाट आर दी रूट्स गाइज? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a. अब क्या आएगा? माइनस बी इज व्हाट? माइनस 10 प्लस माइनस √d इज 16, √16, 2a इज 2√3. ठीक है. तो ये तुम्हारा क्या आएगा? माइनस 10 प्लस माइनस 4 4s are 16 upon 2a. So you can write it in two parts over here, guys. One is minus 10 plus 4 upon 2√3. So that is equal to minus 6 upon 2√3. अब देखो इसको यहीं से सिंप्लीफाई कर दो. 2 3s are 6. अब इसको you can write as √3 the whole square, right? So यहां से क्या बचेगा? माइनस √3 ही बचा बस. The other root over here will be minus 10 minus 4 upon 2√3. This can be written as minus 14 upon 2√3. So this will be 2 7s are 14. अब देखो यहाँ पे इसको यहाँ मैं लिख रहा हूँ, see it over here. So ये minus 7 upon √3 है. Don't keep the denominator as irrational. Multiply by √3 in the numerator as well as the denominator. Rationalization you must have studied in grade 9. तो ये minus 7 √3 upon √3 square is 3. ये दोनों रूट्स आ गए. Is it clear to everybody in this session, guys? हाँ, क्योंकि we are using quadratic formula, इसीलिए उसमें डिस्क्रिमिनेंट तो निकालोगे ना. डिस्क्रिमिनेंट के बिना quadratic formula कैसे कर लोगे तुम? तो ये सबको क्लियर है? बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? बताओ यहां पे. Is this clear to every student in the class? अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. फैक्टराइजेशन मेथड से भी ये हो जाएगा. लेकिन अब सारे क्वेश्चंस, देखो टाइम का इश्यू है. अब मैं सारे क्वेश्चंस सारे मेथड से तुम्हें नहीं बता सकता ना. यहां पे विदाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी तुम इसको कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, ऐसा कुछ नहीं है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दो, तो वो सारी चीजें. अब एक क्वेश्चन में एक ही मेथड, थोड़ा टाइम का वो भी है. एक चीज अभी बचा है, वो करते हैं, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, तो उसको जल्दी से एक बार देख लो. इसमें भी अब ज्यादा रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ये बस समझो. देखो, दो रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर डी, अंडर रूट डी. इसको ऐसे ही लिख लो ना. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, इसका नाम डी क्यों है? इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हो? क्योंकि देखो, दिस इज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू. मतलब मैंने ये कहीं बुक में पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैं इसे ऐसे ही इसको बोलता हूं, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. इसकी वैल्यू के ऊपर इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग कि क्या नेचर ऑफ रूट्स होने चाहिए. समझ रहे हो? इसीलिए तुम इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो. अब बहुत ही बेसिक सी बात है. देखो यहां पे, अगर डिस्क्रिमिनेंट को तुम ग्रेटर देन 0 ले लेते हो, तुम यहां से अगर ग्रेटर देन 0 ले लेते हो, तुम्हें पता है कि यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर. वो
फाइंड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके दो रियल रूट्स होंगे कि नहीं, एक रियल रूट आएगा प्लस माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक रियल रूट आएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स यू कैन फाइंड अप टिल ग्रेड 10। सबको क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद देखो, अगर तुम इसी डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0, इसको तुम इफ यू टेक इक्वल टू 0, तो मुझे एक बात बताओ, दोनों रूट्स ऐसे होंगे कि नहीं, ये ऐसा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास दो रूट्स तो हैं लेकिन दोनों ही इक्वल हैं या नहीं, बताओ। माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, सो इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 बोथ द रूट्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो देखो अब ये 11th में आता है समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आयोटा एंड ऑल दैट, नहीं है वो ग्रेड 10 में, सीबीएसई में एटलीस्ट, बोर्ड्स में नहीं है, फाउंडेशन एंड ऑल दैट की बात अलग है, ठीक है। तो अगर यहां पे d इज नेगेटिव, तो रूट d जो होगा तुम फाइंड ही नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज यू डोंट नो अप टिल द डोमेन ऑफ ग्रेड 10 हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो यहां पे तुम क्या बोलोगे, रूट्स आर नॉट रियल, या उसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। बस ये चीजें हैं। अब सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है कि फॉर इक्वल रूट्स व्हाट इज द कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट उसको क्यों बोलते हैं ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। बताओ ये सबको क्लियर है या नहीं है? इज दिस क्लियर अप टिल हियर टू एवरी स्टूडेंट watching this session? Just let me know that in the chat guys. क्लियर है? आराम से सुनो, परेशान नहीं होना है, इतना वही चीजें मैं बता रहा हूं जो आएंगी बोर्ड्स के बारे में। Is this clear to everybody guys? Let me know that guys in the chat below. ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं है, ज्यादा वो नहीं। अब प्रूफ देखो बहुत सारी चीजें हैं। अब कोई तुम पूछ लोगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए क्यों होता है, वो यहीं से हो जाएगा। अब प्रोडक्ट जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा कम से कम कर लो अपने से। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए क्यों होता है इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन दोनों को ऐड करो तुम्हें माइनस बी बाई ए मिल जाएगा। फिर अल्फा बीटा सी बाई ए क्यों होता है, यहीं से वो भी आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगाओ, यहां से सी बाई ए भी मिल जाएगा। तो वो सारी चीजें होंगी, वो नहीं पूछता है तुमसे, कोई बोर्ड में नहीं पूछेगा, तो उसमें मत करो ज्यादा अभी, है ना। वर्क अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम्स नाउ। तो ये तुमने आई होप याद तो होगा ही सबको, फिर भी एक बार चाहो तो अभी नोट कर लो, सो दैट वी कैन डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट if the roots are equal, or you can say the condition for equal roots is discriminant is equal to 0, that is b is equal to d is equal to 0, that is b square minus 4ac is equal to 0, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं ये भी बता दिया। चलो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर करो, ये आई डोंट रिमेंबर, शायद ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। बताओ यहाँ पे, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k ओवर हियर? बताओ गाइस। For real and equal roots, what is the value of k over here? Are you guys there? कोई है यहाँ? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, या मैं इस घर में अकेला खड़ा हूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलो, ऋषिका is getting option C over here. Jay Engineering is also getting C. What about other students? बताओ guys. D, C, C. चलो, देखो यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन ये है, मैंने क्या बोला, वो यही पूछेगा तुमसे, वो इनइक्वालिटी नहीं पूछेगा। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, सुनो इधर, एक सेकंड के लिए सुन लो। ये चीज़ें क्या है, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है, ये इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं। अगर अभी तुमने पढ़ लिया होगा तो ठीक है, वरना 11th में ज़रूर पढ़ोगे। तो इनइक्वालिटी वाले सवाल ना वो बोर्ड्स में नहीं देंगे तुम्हें, ये बात तुम समझ जाओ।
तो यहाँ पे क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होगी, सीधी सी बात है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, खत्म। क्या था डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीक्वेंस है भाई, ए बी सी में क्या कंफ्यूज होना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बी यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सो बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर यानी 1, सो बी स्क्वायर माइनस 4a, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म k, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक बच्चा भी निकाल देगा k की वैल्यू, सो 16 माइनस 4k दैट इज इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू बताओ, 4 आ गई, है ना। सो k इज इक्वल टू 4 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, उनको ज़्यादा आप पे दया आ गई तो वो 2 नंबर का कर देंगे। सो इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल, चैप्टर के हिसाब से ही, बिल्कुल सारे चैप्टर्स देखो। अगर तुमने अभी तक प्लेलिस्ट चेक नहीं की है, मैंने इसके पहले लीनियर इक्वेशन, रियल नंबर्स करवाया, पॉलिनोमियल्स करवाया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वी आर डन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं, तो प्लीज चेक आउट द प्लेलिस्ट। और भी साइंस के सारे सब, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का वो सब हो रहा है, उन चीज़ों को देखो, ठीक है, एक बार देख लो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में भी एक बार डाल दो, ताकि द सेम फैकल्टी कैन रिप्लाई ओवर देयर। ये सबको क्लियर है, बताओ यहां तक? चलो एक और क्वेश्चन कर लो। अब यहां पे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इन दिस क्वेश्चन। हाँ ठीक है, गलती से गलत मत करो। देखो वही, अब कैलकुलेशन में गलत करोगे तो क्या कर सकता हूं मैं, बताओ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा ना उस केस में। इक्वेशन सॉल्व करने में गलती नहीं कर सकते हो तुम, खास करके लीनियर इक्वेशन। यू गाइज आर इन ग्रेड 10, है ना, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, प्रैक्टिस वाली बात है। प्रैक्टिस, देखो तुम्हें सब कुछ आता होगा, मैं मान गया भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जो जब मैं 10th में था मेरे टीचर बोलते थे, प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में तुम 2 लिखोगे, वो -2 लिखा जाएगा अपने आप, ऐसा भी होता है। मतलब you will write 2, it will automatically get written as -2, और तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुमने -2 लिख दिया वहां पे। मैथ है ना, कोई इंग्लिश, देखो कोई वर्ड नहीं है कि तुमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन मैथ्स में तुम 2 की जगह -2 लिख दोगे तो कहानी बदल जाएगी पूरी। तो कुछ भी नहीं करना है, वही करो जो सिलेबस में है, आलतू फालतू अब मत करो, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इट्स अबाउट एवरी सब्जेक्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेंगे, वो भी करेंगे अर्नव, ठीक है। अभी ये कर लेते, चलो टाइम अब बचा नहीं है ज्यादा, है ना। 2 इक्वल रूट्स, वही वाली कहानी, देखो रियल एंड इक्वल रूट्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन मैंने बताई, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, या तुम कह दो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसको करते हैं जल्दी। अब b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये सारी चीजें b हैं, x में जो भी मल्टीप्लाइड है वो सारी चीजें b हैं। सो b स्क्वायर m-1, ये देखो दी होल स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में जो मल्टीप्लाइड है। सो m-1, c क्या है 1, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2 स्क्वायर 4 होता है, और ये आएगा m-1 दी होल स्क्वायर -4 इंटू m-1। अब एक बात सुनो, यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे। भाई ये कलाकारी मत करना एग्जाम में, ये इन चीज़ों को ओपन करके कोई फ़ायदा नहीं होगा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे चीज़ें कॉमन दिख रही हैं मुझे, तो 4 इंटू m-1 आई कैन सी कॉमन ओवर है, राइट। सो 4 इंटू m-1, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, m-1 -1 बच गया आपके पास, एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करो, 4 इंटू m-1, यहाँ पे देखो -1, सो m-2 आएगा क्या यहाँ से, बताओ। तो यहाँ से m की 2 पॉसिबल वैल्यूज आएगी नहीं, दैट इज m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 2, ठीक है।
अब मुझे बताओ क्या ये दोनों आंसर्स हैं? आर दीज बोथ द वैल्यूज करेक्ट? m की वैल्यू 1 भी होगी और 2 भी होगी? बताओ, एक बात देख के बताओ। मैंने पहला ऑप्शन दिया ही ऐसे इसीलिए ये आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, मैंने इसमें ऑप्शंस डाल दिए हैं और बोर्ड में भी तुम्हें ऐसी ही वैल्यू वो देगा जान के। तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि m की वैल्यू 1 नहीं हो सकती यहाँ पे। इसका रीजन ये है कि अगर तुम m की वैल्यू 1 ले लोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 हो जाएगा भाई। ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। m की वैल्यू तुम 1 ले लोगे तो ये m माइनस 1 0 हो जाएगा ना। इधर देख के बताओ, अगर m की वैल्यू तुम 1 पुट करते हो सो m माइनस 1 विल बी 0, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही 0 हो जाएगा, तो दिस इक्वेशन विल सीज टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो फिर पूरी कहानी किस बात के लिए? तो इसीलिए m इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? सबको क्लियर है यहां तक? बताओ। तो इस क्वेश्चन में खास करके इस चीज का आपको देंगे वो, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, तो वो तुम्हें देंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब तुमने पूरी कहानी कर ली, देखो ऑब्जेक्टिव में यही तो होता है, तुमने सब कुछ कर लिया और लास्ट में एक गलती कर दी, तो तुम क्या करोगे? 0 मिल जाएगा तुमको, एक के जगह पे 0 हो जाएगा। अगर 2 मार्क का होगा तो भी 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? चलो अब देखो, एक क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही है, इसको तुम अपने से ट्राई करो। ये प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसका आंसर तो तुम चैट में लिख नहीं पाओगे, फिर भी अगर कोशिश करोगे तो करोगे, हो जाएगा। ये आसान है, तो इसको करो, ठीक है। सो इसके बाद देखो, अभी सेशन है पलक मैम के साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, तो उसको देखो, उसको अटेंड करो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलो, क्योंकि तुम्हें नोटिफिकेशंस मिले। कुछ नहीं समझ में आया हो या पहले की चीज़ें क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट चेक करो। टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे आफ्टर द क्लास यू विल गेट a set of 15 most important questions in every subject. So that's all we needed to do in this class. We'll meet in the next session tomorrow at 3 p.m. Bye-bye. Take care, everybody.